So I'm gonna share the screen to you guys. Let me know. So in today class, we will gonna study about the urinary or excretory system. So basically, what is excretory system? As the name suggests, all the things which has been excreted out from your body in order to remove the toxins or in order to remove the waste materials that is eliminated by the excretory system. Generally, the major excretory system in our body is the kidney one, the urinary system. But there are the several organs which work as the excretion of whether for the metabolic activity, whether for the any kind of different activities. So, what is excretory system? The excretory system is responsible for eliminating the waste material produced by the body internal processes. This waste is, if these are not removed, can begin the harmful and interfere with the normal body function. The system includes a variety of organs that work together to filter the blood and expel waste product through urine, sweat, or breathing. Like if we talk about what is the process of a sweating, the sweating has been like it is a basic process in order to maintain the homeostasis of your body, right? What is a homeostasis? When your body is trying to adjust its own temperature according to the external environment. So suppose if you are in a weather like it's hot temperature, what your body will do? It will just start sweating. Automatically, the toxins has been made in your body, and in order to calm down your body will start sweating. So through sweating, the toxins will remove out. So it is also kind of a excretory part, right? Also the breathing. The breathing is also kind of excretion because you are just exhaling the CO2 from your lungs. This is a kind of a waste, like CO2 has been made after the biosynthesis processes of your cell, right? So this is very mandatory to expel the CO2 outside from from your body. So breathing is also a main excretory part, like excretory system part through which it is performed by the lungs. Now we will understand the how system function helps and appreciate the importance of a waste removal in maintaining health. And in this presentation we will explore the organs involved, how urine is formed, and how the body ensures that the toxins are excess materials are removed efficiently. Till then, everything is clear and understood to everyone, guys. Manal, Arpita, Bilkish, Prince. Is there any doubt yet? Guys, बेटा बोलो किसी को कोई डाउट इतने में अनम्यूट करके बोल भी सकते हो तुम. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Excretory system. What is excretory system? Basically, the excretory system is a network of a organ and the structures that remove the metabolic waste from the body. So this waste material include the substances like urea produced from breaking down proteins, excess water, salts, carbon dioxide. Without a system to remove these substances, the body would become overloaded with the toxin. Suppose, like if these things will not be removed out, what happened to your body? You have seen people those who are suffering from the constipation, like they are not able to poop. So what happened alternatively in their body? The toxins level arise because their metabolic rate has been decreased, due to which the disturbance between the gut and all the biosynthesis processes has been occurred. And alternatively, that specific person
is he or she was like suffering from hell like a stomach pain. So these things are very mandatory in order to eliminate the waste things from your body. So the system includes the urinary system, that are the kidneys, which remove the toxins in order or in a form of urination. Urethra, bladder, like bladder, urethra, as well as supporting organs like the skin, lungs, and the liver. Each kind of a organs plays an vital role for maintaining the homeostasis, which I already told you. The homeostasis is a process in which your body is trying to adjust its own body temperature according to the external factors or the internal balance by ensuring the waste products are eliminated safely and effectively. Clear to everyone? Till then, any doubt, guys? No, ma'am. Okay. So why this is very mandatory to eliminate the products from like to eliminate the CO2 from your lungs? Can anyone tell? I have just elaborated. क्या मैम आपने क्या कहा? मैं ये बोल रही हूँ कि जो हम लंग्स में से CO2 को बाहर ब्रीथिंग के थ्रू फेंकते हैं, वो CO2 किस चीज से बनती है? अभी मैंने बताया था. कैन एनीवन टेल? बताओ, अभी तो मैंने बताया था तुम्हें. CO2 has been made by the different kind of a biosynthesis process occurred in your body. अब जितनी भी biosynthesis process होगी, that may be glycolysis, that may be anything, in order to perform the specific function or the basic function of your regulatory like regular system, daily के जो system होता है उसको maintain करने के लिए, whether the secretion of insulin or anything, so that certain process will induce, means that certain cell will induce what? Waste after the whole process. So the waste has been occurred in the form of a gaseous, that is CO2. Now it's clear to everyone, guys. तानिया मैम, हाँ जी सर. हेलो। इसमें कितने हाँ जी बच्चे हैं सर. टोटल? सर इसमें टोटल बच्चे हैं 18 और अभी आज कम ही अच्छा, बच्चे 6 हैं, ही हैं 4 ही अभी। आए हैं. हाँ, चार. ओके कितने मैंने देखा ओके, नहीं. हाँ. ठीक है ठीक है। एक बार लिंक रीशेयर कर देना बच्चों से। हाँ सर, मैंने शेयर करा, अभी तक भी नहीं आए हैं. उनको फिर बोला है मैंने ग्रुप में भी, सर काउंसलिंग में भी बोला है. ठीक है, कैरी ऑन। इससे इससे पहली क्लास में भी कम थे. वो 9:30 थी क्या? 10 10 20? एक मिनट सर देखती हूँ. इससे पहले वो 10-20 पे थी. श्रद्धा मैम की क्लास थे एम बायो की. ओके ओके, नहीं 10 20 पे आपकी थी या श्रद्धा मैम की? सर 10-20 की मेरी कॉस्मेटिक साइंस की क्लास थी 8 सेम हाँ में. हाँ, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, उसमें एक भी बच्चा नहीं था? नहीं सर, उसमें 61 बच्चे थे. मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके अच्छा रखी है. सूरज सर भी आए थे 8 सेम अच्छा, में. ओके फाइन, हाँ जी. ठीक है। सो ये चीजें क्लियर है मैंने लग कि CO2 कैसे बनता है? यस मैम। बताओ बेटा. तो समझ में आ गया कि जब भी आपकी सेल में से कोई भी बायोसिंथेसिस प्रोसेस होगी रेगुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो क्या होगा? वो सर्टेन काइंड ऑफ गैसेस को रिलीज करेगा, दैट इज CO2. और वो CO2 हमारी बॉडी में कैसे एलिमिनेट होता है? थ्रू लंग्स, राइट? लंग्स से एलिमिनेट करता होगा, तभी आप CO2 छोड़ते हो, O2 लेते हो.
So the lungs are also a part of excretory system. Now talking about the major organ of the excretory system is the kidney. The main organ of excretory system are the kidney, urethra, bladders and urethra. Together these organs make up the urinary system. The kidneys are the key filters removing the waste and the excess fluid from the blood, and the urethra carry the filtered urine to the bladder where it is stored until the body is ready to release it through the urethra. So basically what happened, your kidney has a power, like basically किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, राइट. सो जब आपकी बॉडी में से किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, सो जो उस चीज को रिक्वायर्ड, लाइक इट रिक्वायर्ड nutrients, it requires vitamins, it requires several kind of minerals, कैल्शियम, ये उन सब चीजों को ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है, जो चीज उस टाइम मैंडेटरी होती है एज पर द डिमांड ऑफ योर बॉडी. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपन, सपोज करो आपके किडनी में भी क्या है, प्रॉपर पार्ट है. अभी मैं आपको इसको समझाऊं तो एक सेकंड में बैक करके समझाती हूँ. देखो इस पे सबको विजिबल है. अब देखो जो आपका किडनी है ना, ये अब किडनी में भी क्या होता है, आपका फिल्ट्रेशन का काम होता है, राइट. सो किडनी जब आपका फिल्ट्रेशन का काम करती है तो इसके ऊपर क्या होता है, आपका वोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. अब जो क्या है, आपकी नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो आपकी सब चीज को फिल्टर करती है. अब ये क्या है, बोमन कैप्सूल्स, और ये क्या है, प्रॉपर आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसे हम GFR भी कहते हैं. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मीन्स कितने एक मिनट में कितनी बार वो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, जितनी बार आपकी हार्ट रेट क्या है, आपकी कितनी टाइम हार्ट रेट होती है 72 टाइम पल्स के अकॉर्डिंग मानो, तो 72 टाइम्स आपका ब्लड क्या है किडनी के पास आया एक मिनट के अंदर, तो उतने टाइम में ये कितना फिल्टर कर रहा है. जब अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है, इट इज नॉट एबल टू फिल्टर द ब्लड. तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी के सर्टेन पार्ट्स में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है. तो जब आपके बॉडी के सर्टेन पार्ट्स में स्वेलिंग होगी तो क्या होगा, आपको क्या करना है, बॉडी के सर्टेन पार्ट में स्वेलिंग होगा, यू नीड टू सी दैट कि वो पैर की तरफ है, लेग्स में है या हाथ में है. अगर वो पैर की तरफ है, इट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन द किडनी, कि आपका जो किडनी है वो अच्छे से क्या है, खून को फिल्टर नहीं कर रहा है. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द हैंड, यू विल सी कि जो आपका फिल्ट्रेशन अगर किडनी पे इफेक्ट आएगा ना, तो वो ब्लड को क्या है, वापस बाउंस बैक मार देगा. अगर ब्लड को वो वापस बाउंस बैक मारेगा तो क्या होगा, वो सारा ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, राइट. क्योंकि लंग्स से ही हमारा क्या है, O2 बन के सारा ब्लड आ रहा है, राइट. तो लंग्स के पास जब सारा ब्लड जाएगा तो वो वापस से क्या है, बाउंस बैक होके वहां पे सारा स्वेलिंग स्टार्ट होगा. इन शॉर्ट यू विल सी द स्वेलिंग इन हैंड्स, एंड वो चीज आपकी फेलियर में जाती है. इफ योर किडनीज गोज इन लाइक इज नॉट एबल टू क्लियर द फिल्ट्रेशन और पंप आउट द ब्लड, आपका फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होगा, वो क्या है, लंग्स पे लोड बनाएगा. लंग्स पे लोड बनेगा, ऑटोमेटिकली आपका क्या है, हार्ट पे लोड बनेगा. हार्ट पे आपका क्या है, फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होगा, वहां पे प्रेशर इंक्रीज होते ही आपको टेंशन जैसे क्रिएट होगी. जैसे मान लो आपकी नॉर्मल आर्टरी है, अब इस पे टेंशन क्रिएट हो गई, यहाँ पे आपका क्या है, पूरा का पूरा क्या है, टेंशन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना. प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से क्या होगा, कोई बता सकता है, वहां पे आपका कंडीशन बनेगा लाइक अटैक. प्रेशर की वजह से अटैक लाइक कंडीशन बनेगा. और वेदर वहां पे चीज फिर पूरी तरह से अगर नहीं जा पाएगी, बाउंस बैक नहीं जा पाएगी, तो आगे सप्लाई नहीं होगा, तो अटैक के बाद वो कौन सी कंडीशन बनेगी, फेलियर की. कौन सी, फेलियर की, हार्ट फेलियर. सो किडनी का फिल्ट्रेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है. सो ये सब डिपेंड करते हैं GFR पे. GRF ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे डिपेंड करता है. अब ये क्या है, आपकी नेफ्रॉन की यूनिट है. अब नेफ्रॉन की जो यूनिट है ये क्या करता है, प्रॉपर आपका इसमें आपके सर्टेन पार्ट्स होते हैं. लाइक पहले इसका जो है लाइक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले,
This is a PCT, proximal converting tubule. This is a DCT, distal convoluting tubule. And लास्ट में इसके कलेक्टिंग डक्ट होते हैं जिसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके कलेक्ट होते हैं. अब जनरली इसका काम क्या होता है? अब इसका काम होता है कलेक्टिंग डक्ट में जितना भी आपका प्रोडक्ट आया है, जैसे कि मिनरल्स आ गए आपके आपके क्या आ गए, विटामिन्स आ गए, उन सबको क्या करके रखता है वो, रिस्टोर करके रखता है. जब आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी, एज पर द रिक्वायरमेंट वो क्या करेगा, उस चीज को पास करके आपकी बॉडी को सप्लाई करेगा. इतना क्लियर है सबको गाइस? Yes, कोई ma'am. डाउट? Yes, ठीक. ma'am. No, ma'am. कौन बोला नो? नो कौन बोला बेटा? मैम मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला नो डाउट है ऐसा. अच्छा, नो डाउट. बिल्किस समझ Yes. में आया? यस मैम. ठीक है. सो इसलिए किडनी का फिल्ट्रेशन भी कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हें पता लगा. ये सारी प्रोसेस समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक. नाउ मूविंग बैक टू द पॉइंट. सो सबसे पहले जो ये ऑर्गन्स होते हैं, दिस आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर टू मेक श्योर कि जितना भी वेस्ट है आपकी बॉडी से अच्छे से रिमूव हो जाए और क्लीन हो जाए. सो दिस प्रोसेस इंश्योर द इम्पोर्टेंस substance like nutrients and the waters are retained and reabsorbed when needed. जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि जब जरूरत हो तो वो अच्छे से उनको स्टोर करके रखते हैं ताकि वो बॉडी से एलिमिनेट ना हो जाए. So the excretory system is a vital because it helps to regulate the internal environment of the body. It also ensures the waste products which are produced during the digestion, respiration, and the other metabolic processes are safely removed. Right? So without this system, the harmful substances would build up and disrupt the function of other organs. In addition to the waste removals, the system helps to control blood pressure, pH level, and water balance. This function are crucial for survival and helps the body stay in state of balance, allowing all the system to function properly. अच्छे से सारे फंक्शन को मेंटेन करके रखता है ताकि बॉडी अच्छे से सरवाइव कर सके और खुद को बैलेंस कर सके अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ताकि उसके पीएच लेवल, वाटर लेवल, हर चीज बैलेंस आउट रहे. नॉट टॉकिंग अबाउट द किडनी. द किडनीज आर द बीन लाइक स्ट्रक्चर, राजमा की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है. इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द रिब केज. जो हमारी छाती होती है ना, मीन्स किडनी हमेशा पीछे की तरफ आपकी होती है, आगे की तरफ कभी भी नहीं होती. इसलिए जब किडनी का पेन होता है ना, वो साइड में पेन होता है क्योंकि वो किडनी पीछे की तरफ होती है. ठीक है, पोस्टीरियर होती है, एंटीरियर नहीं होती है. सो दे फिल्टर अबाउट द 50 गैलन ऑफ ब्लड ईच डे. 50 गैलन इज ह्यूज अमाउंट बेटा. मैं बोल रही हूँ 50 गैलन. आप एक मिनट में 72 टाइम की बात करें तो 50 गैलन कितना सारा खून हो गया. समझ रहे हो? उसको फिल्टर करता है, removing the waste material and forming about the 1.5 liter of the urine. कम से कम एक दिन में 1.5 लीटर से लेके 2 लीटर तक यूरिन आता है. दिस इज अ लाइक सिंबल ऑफ अ healthy human body. And each kidneys contain over 1 million nephron. Nephrons contain करता है जितना भी आपका फिल्ट्रेशन है, ये सारा नेफ्रॉन का ही स्ट्रक्चर था. मैं ऊपर जो आपको बताई ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो बोर्मन कैप्सूल, पूरा वो नेफ्रॉन का ही स्ट्रक्चर था. अब उसके अंदर सारा क्या होता है, नेफ्रॉन आपकी यूनिट है किसकी, किडनी की यूनिट क्या है, नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन आपका सारा फिल्ट्रेशन करके रखता है. So each kidney contain over 1 million nephrons, tiny structures that filters the blood and begin the urine making process. The blood enters the kidney through the renal artery. It's filtered into the nephrons and exits via the renal vein. आर्टरी से ब्लड एंटर करता है, नेफ्रॉन से फिल्टर होता है और रेनल वेन से वापस जाता है. अगेन, आर्टरी से ब्लड एंटर करता है, नेफ्रॉन से फिल्टर होता है और रेनल वेन से वापस जाता है.
The kidney also helps to regulate the red blood cell production and maintain the body balance of salt, water, and minerals. Now we will talk about the how urine is formed and excreted. Urine is formed through three main steps. First is a filtration, second is a reabsorption, and the third is a secretion. In first, what happened? The blood is filtered in the glomerulus part of the nephron to remove the waste and the extra water. In the next, the body reabsorbs the substance and it still needs like glucose and some salts. Finally, the remaining waste is secreted into the collecting duct. मैंने आपको बताया था ना अभी स्ट्रक्चर में लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट होता है जिसके अंदर हमारा सारा प्रोडक्ट आता है और जिसमें सारी चीजें चली जाती है जो वेस्ट में होता है और जो हमारा क्या है बॉडी से एलिमिनेट करने वाला पार्ट होता है. So as a urine, one form the urine flows from the kidney through the urethra. These are the kidney जो ऊपर दे रखा है and इसके जो ये साइड में ये पार्ट दे रखे हैं these are the urethra और इसमें जो दे रखे हैं इसका urinary bladder. उसके बाद क्या है हमारा यूरेथ्रा के थ्रू पूरी ऊपर यूरेट्रा है ये क्या नीचे ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा है जिससे सारी चीजें एलिमिनेट होती हैं. सो वेयर इट इज स्टोर्ड एंड द ब्लैडर इज फुल. ये जो ब्लैडर है जब ये फुल हो जाता है ये जब फुल हो जाता है सो द बॉडी सिग्नल्स मीन्स आपको यूरिन की अर्ज होती है यूरिनेशन की अर्ज होती है आपको होता है कि यूरिन जाना है मतलब यूरिन करने जाना है आपको तो आप जाते हैं और बॉडी से क्या है यूरिन को रिलीज करते हैं देन आपकी बॉडी से क्या है सारे वेस्ट जो होता है रिमूव हो जाता है. सो दिस इज द प्रोसेस लाइक द फर्स्ट वन इज अ फिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. क्लियर टू एवरीवन गाइस? बोलो यार. Yes, ma'am. एक बार पानी पी लूं मैं. Yes, होल्ड ऑन ma'am. फॉर 1 सेकंड. The other excretory organs are, in addition to the urinary system, there are the several organs which helps to remove the waste. Like already told you about the lungs which expel the CO2, right? And the water vapor during the exhalation. The skin excretes excess salts and urea through sweat. The liver plays a crucial role in breaking down the toxin and converting harmful substance like ammonia into urea. So these are the supporting organs alongside the kidney to maintain the body internal environment. In short, the homeostasis. By using the different pathways, the body can handle a wide variety of waste material and prevent a dangerous buildup. Now, talking about the disorder related to the excretory system. What are the disorder related to the excretory system? Generally, we have seen the patient are suffering from the UTI. So UTI को अभी हम पीछे आगे डिटेल में पढ़ेंगे UTI होता क्या है और the common disorder like the kidney stones which blocks the urine flow जिससे पेन अकर होता है. UTI हो गया जो बैक्टीरिया से होता है. किडनी फेलियर हो गया जब आपकी किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है. इन सीवियर केसेस पेशेंट्स को डायलिसिस भी चाहिए होता है. डायलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल किडनी जिससे आपको क्या है वीक में 2 बार जाके डायलिसिस करवाना पड़ता है जिससे आपका ब्लड फिल्टर होता है सारा. दैट इज वेरी डिफिकल्ट. डायलिसिस पे पेशेंट डायलिसिस तब होता है जब आपके दोनों किडनी खराब हो जाती है. अदरवाइज इंसान एक किडनी में भी रह सकता है. A treatment that uses a machine to clean the blood or even a kidney transplant. Early detection to the treatment of excretory disorder are important to prevent the long-term damage. So these are the excretory system को अच्छे रखने के लिए हेल्दी रखने के लिए क्या चीजें अच्छे से पानी पीना चाहिए जिससे आपके क्या है सारे टॉक्सिन अच्छे से फ्लश आउट हो जाए. अच्छे डाइट खानी चाहिए जिससे क्या है आपका हर चीज का बैलेंस रहे चाहे सोल्ट हो चाहे शुगर हो. और आपको क्या प्रोसेस फूड से बचना चाहिए. और बताती हूँ प्रोसेस फूड्स कौन से हो गए जैसे कि आपके ऑलरेडी जो मार्केटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो लंबे टाइम के लिए जिसमें प्रिजर्वेशन यूज की जाती है प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है. मीन्स जो भी चीज आपकी ताजी नहीं बनती फ्रेश नहीं बनती है मार्केटेड होती है लॉन्ग टर्म बाद यूज कर रही है तो ये चीजें आपको बहुत गंदा इफेक्ट देते हैं. टबैको जैसी अल्कोहल जैसी चीजों को दूर रहना चाहिए क्योंकि देखो टबैको क्या आपका लंग्स पे इफेक्ट देगा. लंग्स पे इज अ पार्ट ऑफ अ एक्सक्रीटरी
जिससे आपका क्या ऑक्सीजन नहीं आएगा तो आपके फिल्ट्रेशन भी अच्छी नहीं हो पाएगी, किडनी पास उतना खून ही नहीं आएगा, राइट। जब हार्ट पंप आउट नहीं करेगा, हार्ट पंप आउट कैसे करेगा जब तक उसका किडनी देगी नहीं, किडनी नहीं सॉरी लंग्स देगा नहीं, है ना। सो अल्कोहल का भी इम्पैक्ट आपका लीवर पे आता है। सो इन सब चीजों को हम अच्छे से रख के अपनी चीज को बैलेंस करके, लाइफस्टाइल को बैलेंस करके अपनी किडनी और अदर एक्सक्रीटरी सिस्टम को अच्छा रख सकते हैं। Now talking about the symptom like such as a pain during the urination, blood in the urine or swelling can help detect problem early. अगर मान लो आपको यूरिनेशन के टाइम दर्द हो रहा है, आपको खून आ रहा है, अगर आपको मान लो उस पर्टिकुलर जेनिटल पार्ट पे स्वेलिंग है, then you need to go to the doctor and you need to seek the medical attention. Now talking about the UTI in a detail, UTI is a generally a urinary tract infection is a common condition that occurs when the bacteria enters in the urinary tract. जनरली क्या है फीमेल्स में ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि फीमेल्स का जो जेनाइटल पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, दैट इज ओपन अकॉर्डिंग टू द मैन। सो जनरली फीमेल्स में इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बैठ के भी क्या है सेवरल पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करती हैं। सो इस चीजों को अवॉइड करने में, इन चीजों से बचने के लिए सेवरल पॉइंट्स भी हैं। अब इसमें जनरली क्या आपको जब भी यूरिनेशन आता है, यूरिन आता है, तो बर्निंग जैसी सेंसेशन महसूस होती है, इसकी सिम्टम्स है। आपको दर्द होता है पेट में लगातार, आपको स्मेल आती है, आपके यूरिन के अंदर झाग बनती है, आपको बहुत गंदा दर्द होता है। सो दिस आर द सिस्टम। तो जब आपको लगे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, आपको क्या है तुरंत मेडिकल अटेंशन लेके दवा स्टार्ट करनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब भी हम क्या है जाए पब्लिक टॉयलेट यूज करने। वी नीड टू मेक श्योर दैट शुड बी क्लीन, वरना आप क्या है पब्लिक जो सैनिटाइजर आते हैं पी सेफ करके आते हैं, आप वो स्प्रे करके यूज करें, क्योंकि फीमेल्स को ही ये एड्रेस करने में ज्यादा होता है, क्योंकि मेल्स are not facing this kind of a issue generally. Males also do not require to sit on the particular toilet पे बैठने की उनको जरूरत नहीं है, right? So in short, the females are also required what? जब आपको हो ऐसी चीजें तो plenty ऑफ वाटर मीन ज्यादा पानी पीना चाहिए, कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ आप इन सब चीजों को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। और जब भी आपको लगे आपको जलन महसूस हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, तुरंत आप डॉक्टर पास जाओ, क्योंकि यूटीआई ज्यादा बढ़ जाता है और ये कंडीशन फिर अच्छे से ठीक नहीं होती। और एक बार होने लग जाए ना, आप पब्लिक टॉयलेट को तो प्रिवेंट मतलब कि अवॉइड ही करना स्टार्ट करो, ज्यादा यूज मत करो। प्रेफरेंस किसको दो आप, जो इंडियन टॉयलेट्स होती है अकॉर्डिंग टू जो इंग्लिश टॉयलेट है उससे ज्यादा आपको बेटर इंडियन टॉयलेट्स रहते हैं, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। सो यूटीआई सबको क्लियर है कि यूटीआई होता क्या है गाइस? Yes, ma'am. Okay, now talking about the Yes, ma'am. pathology of a urinary tract and comprises a diverse range of disorder affecting the kidney, urethra, bladder, and urethra. These are the common conditions which include the UTI, kidney stones, various forms of nephropathy, such as diabetic nephropathy as a glomerular phytis. UTI are typically caused by the bacteria infections, most oftenly by the Escherichia coli, leading to the symptoms like frequent urination, pain, fever, kidney stone, and hard minerals and the salt deposit that forms in the kidney can cause a severe pain and the hematuria blood along with the urine. So the chronic condition like a nephropathy involves the damage to the kidney. अगर ये चीजें लंबे टाइम तक रहे ना तो आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, इसलिए टाइमली इसको अच्छे से मॉनिटर करके उस चीज को ट्रीट करना और मैनेज करना जरूरी है। थैंक यू। कोई डाउट? बच्चा लोग कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. नो डाउट? No, ma'am. सब समझ में आया? Yes. अच्छा था चैप्टर?
बताओ बताओ। अच्छा तो चैप्टर यस मैम। अच्छी बात है। मैम एक मैथ का क्लास कब होगा हमारा? मैथ की क्लास मैं पता करती हूँ बेटा।